اور ابھی بھی بہت سارے علماء کرام باقی ہیں کہ جنہیں ہمیں سننا ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے آواز دوں گا جناب مولانا انوار اشرف قادری صاحب کو، جو بانی ہیں دارالعلوم فیضان مصطفیٰ میرا روڈ کے، کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھیں. جناب مولانا انوار اشرف قادری صاحب دامت برکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصلاح معاشرہ کے لیے محفل رکھی گئی ہے، تو سب سے پہلی اصلاح تو یہی ہے کہ میں نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب زور سے دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سمجھ میں آیا کہ آپ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیجئے. میری ایک عادت ہے بولنے اور بلوانے کی، ٹھیک ہے؟ ساتھ دیجئے گا تو بہت کچھ ملے گا، نہیں تو علماء کرام دینے کو بیٹھے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المطہر الکریم، الحمدللہ رب العالمین. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند منٹوں میں ابھی جو آپ نے اس سے قبل خطبہ سے اور سماج کے ایک ذمہ دار سے بات سن رہے تھے، تو یہ ساری چیزوں کا علاج ہے محبت. کیا علاج ہے؟ محبت. محبت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اولاد کو سدھارنا ہے تو محبت، بچے کو سدھارنا ہے محبت، بیٹی کو سدھارنا ہے محبت، مولانا صاحب سے محبت کریں گے تو آپ سدھریں گے. تو محبت ایک ایسا پیغام ہے جس کے بعد آپ کی سدھار ہو جائے گی. اور یہ موضوع میں نے اس لیے لیا، کچھ بچوں نے فرمائش کی لیکن میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن بچوں کا دل لکھنا ضروری ہے. تو چند منٹوں میں اب سماعت کریں کہ محبت سب سے پہلا فلسفہ ہے ہر بیماری کی علاج کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برائی، زور سے سمجھیے، بولیے، کیا ہے؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو ہر بے حیائی کا علاج کیا ہے؟ اور بچوں کو نماز میں لانی ہے تو ان سے کیا کرنی ہوگی؟ محبت. اور محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہی بن جاتی ہے عبادت. تو اللہ کی وحدانیت سے اتنی لگاؤ، اتنی محبت کہ ہم عبادت کے لیے جھک گئے. رسول سے اتنی محبت کہ ہم ان کے پیغام کو ایکسپٹ کر کے اللہ کی بندگی کے لیے مسجد چلے گئے. تو رسول سے محبت بندگی کا جذبہ ہے، اور خدا سے محبت بندگی ہے، اور اپنی اولاد سے محبت یہی اصل زندگی ہے. تو آئیے محبت پر بتاؤں، چند منٹوں میں سماعت کرو میرے دوستو کہ محبت فلسفہ کیا ہے. کہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اتنے ٹائم میں بات نہیں کر سکتا، ان کی پوری سیرت بیان نہیں کر سکتا. ان کے سارے نام، ان کے 199 نام ہے. کتنے نام ہے؟ زور سے بولو. 99 نام ہے. دیکھیں اہل اسٹیج تو اپنے آپ سپورٹ دیں گے، صرف آپ کا پہلے سپورٹ چاہیے. کتنے نام ہے؟ 99 نام میں سے ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. کتنے حروف ہیں؟ 4 میں سے صرف ایک حرف میم. کیا ہے؟ میم. صرف میم بتاتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھنے سے پہلے غیر تھے، یہود و نصارہ تھے، مگر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، کلمہ طیبہ زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو میم محمد کے صدقے میں ہمارا نام مسلمان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے تعجب تو ہوگا کیونکہ نام مسلمان تو کوئی بتاتا نہیں، پہچان کچھ اور بتاتا ہے. نشہ بیماری ہے، ایک اور نشہ ہے جو ہم نے اپنے سماج میں گھول رکھا ہے.
उस नशे का इलाज करने में आया हूं। एक लड़का देखता है दाढ़ी टोपी थोड़ी अलग नजर आई तो गाली देना शुरू करता है, दिल से नफरत करना शुरू करता है, पायजामा देखकर नफरत करता है, टोपी देखकर नफरत करता है, झब्बा देखकर नफरत करता है, शॉल देखकर नफरत करता है। ये नफरत भी बीमारी है और ये बीमारी हमने इजाद की है। ये फिरका बंदी की दीवारों को बनाकर फिरका बंदी की ये जो नशा हमने फैलाई है, हमारे नस्लें तबाह हो रही है, दुश्मन हम पर गालिब हो रहे हैं, दुश्मन हम पर गालिब हो रही है। अहले स्टेज न डरे, बैठा हूं मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप सिर्फ सपोर्ट करें। वो सबसे बड़ी बीमारी है। हम चल रहे हैं, नमाज भले कज़ा हो जाए, मस्जिद देखकर नमाज पढ़ते हैं। ऐ काश हम खुदा का घर देखकर नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम मस्जिद का बोर्ड देखकर नमाज पढ़ते हैं, वहदहू ला शरीक का घर समझकर नमाज पढ़ लिए होते। मदरसे का बोर्ड देखकर बच्चे भेजते हैं, रसूलुल्लाह का घर समझकर बच्चे भेज दिए होते। ताली ना बजाएं में सुभान अल्लाह। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही कलमा पढ़े हम बन गए मुसलमान। मीमे मोहम्मद का फैजान हुआ, हम कौन हुए? यही कल से रटना है। कोई पूछे आप कौन तो क्या बोलेंगे? और कब्र में भी यही पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या? तो आप क्या बताएंगे दीन में? दीन इस्लाम, और उसके मानने वाले मीमे मोहम्मद के सदक़े में मुसलमान। वो अरब था, वो जहालत का दौर, वो जुल्म और बर्बरियत की जगह अरब, और उस अरब में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम नाज रखा तो मीम के सदक़े में मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तस्बीह है, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, बोलो सुभान अल्लाह। ये तस्बीह खुदा है, पढ़ते रहो, कुछ और नहीं है। सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। जब कुफ्फार ने सताया और हुक्म इलाही के तहत अब मक्का छोड़कर यसरब जाने लगे। तारीख बताती है कि बीमारियों का घर यसरब माने बीमारियों का घर, वहां नबी ने अपने कदमे नाज को रखा तो मीमे मोहम्मद के सदके में मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। सुभान अल्लाह। क्या बन गया? मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। और नज़ामे हालात और वक्त को सुधारने के लिए अल्लाह ने एक मखलूक बनाई, मीम से मखलूक बनाई, और उस मखलूक का नाम मलाइका रख दिया। सुभान अल्लाह। क्या रखा? मलाइका रखा। रातों दिन को रोशन करने के लिए मीमे मोहम्मद के सदके में महो नजूम बनाया गया। और आपके पैदा होने के लिए जिस पेट में 9 महीना रखा जाता है उस जात को मां कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। मीमे मोहम्मद के सदके में मां कहते हैं। और उस मां की कोख में 9 महीना रहकर जैसे ही गोद में आते हैं तो मां की ममता मिल जाती है। मेरी तकरीर का हर लफ्ज मीम होगा। यह सिर्फ मोहम्मद के एक हर्फ का फैजान है तो जाते रसूल का कितना फैजान होगा। बेशक बेशक। मां और मां की ममता जब मिलती है, बच्चा बड़ा होता है और लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह खानी करा दी जाए, और उस बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए कहां भेजते हैं? मीमे मोहम्मद के सदके में मकतब में भेजते हैं। मीमे मोहम्मद के सदके में मकतब, और उसी मकतब में बच्चा पढ़ते पढ़ते जब कुरान पढ़ने लगता है तो अब इसकी बढ़ोतरी होती है, आगे बढ़ाना है, तो अब उसको जहां भेजा जा रहा है मीमे मोहम्मद के सदके में मदरसा कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? मीम से मदरसा कहते हैं, पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहते हैं। सुभान। जो मदरसा चलाए मोहतमिम कहते हैं, जो मोहतमिम को सपोर्ट करे उसे मिंबराने मदरसा कहते हैं। और जहां बच्चे खाना खाते हैं मीमे मोहम्मद के सदके में मदबक कहा जाता है। अब वहां मीम के साव में पलने वाला बच्चा, दुनिया जाती है तो स्कूल और कॉलेज जा रही है, बच्चा जा रहा है उसे विद्यार्थी कहा जा रहा है, उसे स्टूडेंट कहा जा रहा है, मगर एक कुरान को सीने से लगाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की तरफ जा रहा है तो उसे विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं कहा जाता, मीमे मोहम्मद के सदके में मेहमान रसूल कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा जाता है? मेहमान रसूल कहा जाता है। अब मेहमान रसूल पढ़कर फारिग होने वाला होता है, और जब फारिग होता है तो मीमे मोहम्मद के सदके में अगर तकरीर करे तो मुकर्रिर कहा जाता है।
दारुल इफ्ता में फतवा दे तो मीमे मोहम्मद के सदके में मुफ्ती कहा जाता है, तहकीक करे तो मुहक्किक कहलाते हैं, तफसीर पढ़ाए तो मुफस्सिर कहते हैं, हदीस की तालीम दे तो मुहद्दिस कहते हैं, अगर वो दूसरों से मुनाजरा करे तो उसे मुनाजिर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। किताब लिखे तो मुसन्निफ हो जाए। मीम ही मीम है, एक रसूल पाक की नाम का एक हर्फ जिसकी का एहसान, जिसकी रहमत सारी कायनात पर है, मीम के सदके में मुसन्निफ हो जाता है। अब वही आकर कहता है अगर हमने इमामत की ताब, मैं नमाज की तरफ आ रहा हूं, अब देखें मीम का फैजान देखें कि जिस पानी के एक मखलूक ने अल्लाह के नबी को 40 दिन तक पेट में रखा, मीमे मोहम्मद के सदके में उसे मछली कहते हैं। हजरत यूनुस को मछली कहते नहीं कहते? हिजरत की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार पर जिस कीड़े ने जाल बुना कुफ्फार की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसे मकरी कहते हैं। माशाअल्लाह, उसे मकरी कहते हैं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी थूक को हमारे लिए शिफा फरमाया है, उस कीड़े को मधुमक्खी कहते हैं और उसके थूक को मद कहते हैं। मीम ही मीम है। सुन्नते रसूल पर सलाम करो और हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाने जाओ तो मुसाफा कहते हैं, और फरते मोहब्बत से गले मिल लो तो मुआनेका कहते हैं। माशाअल्लाह। खुशी के वक्त बांटो तो मिठाई कहते हैं, और सबसे प्यारी चीज जो अल्लाह ने दी है उसे मुंह कहते हैं। क्या है वो? मुंह कहते हैं। अगर अंग्रेजी में आओ तो भी चलेगा, जहां से सोचते हैं उसे माइंड कहते हैं। मीमे मोहम्मद के सदके में माइंड कहते हैं। जहां रहते हैं वो मकान है, 10-20 मकान हो जाए तो उसे मोहल्ला कहते हैं, उसे मोहल्ला कहते हैं। मीम ही मीम है कायनात में। अब देखो नेमत के लिए मेवाजात रखे हुए हैं। बात थी कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए जिस घर की तरफ मुतवज्जो होते हैं, मीमे मोहम्मद के सदके में उसे मस्जिद कहा जाता है। जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? मस्जिद। जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाए खड़े होकर, मीमे मोहम्मद के सदके में मेहराब। जहां जुमा को खुतबा दे उसे मिंबर रसूल। और खुद इमाम साहब मीमे मोहम्मद के सदके में मुक्तदा है, और सारे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें तो मीम के सदके में मुक्तदी हो जाते हैं। इमाम मुक्तदा है, नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी हैं। इतने में बांगी साहब आए, हजरत बताइए हमारा क्या? हमने कहा जनाब अजान देने वाले को मीम के सदके में मुअज्जिन कहते हैं, मुअज्जिन कहते हैं। अब मुअज्जिन साहब ने बोला वाह। मैंने कहा यहां मकानों की पहचान नाम से है, बोर्ड से है। अल्लाह के घर की पहचान जो है, अल्लाह के घर की पहचान वो किसी बोर्ड वोर्ड से नहीं है, उसकी पहचान मीनार से हुआ करती है, उसकी पहचान मीनार से है। तो नफरत की दीवारों को तोड़ो और मोहब्बत से अपने आप को जोड़ लो। अल्लाह की वहदानियत, रसूल के रसाल के बाद, रसालत के बाद अगर कुछ तुम्हारे पास है तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहब्बत करो, गैर भी अपना हो जाएगा। मोहब्बत करो, दुश्मन दोस्त बन जाएगा। तो मोहब्बत करो, पूरा मोहल्ला तुम्हारा ताबेदार हो जाएगा। मोहब्बत करो, इस्लाम का बोलबाला कल भी था, कयामत तक रहेगा। मां की ममता से लेकर यहां तक कि मौलूद से मौत तक मीम ही मीम है। और मर के जहां जाओगे उसे मैदाने महशर कहते हैं। जहां अमल तोले जाएंगे उसे मीज़ाने अमल कहते हैं। जहां रसूल बख्शवाएंगे उसे मकाम महमूद कहते हैं। और आइए उलमाए किराम चिट्ठी विट्ठी दे रहे हैं, समझ में तो आता नहीं। मैं बता रहा हूं, सुन, नफरत की दीवारों को तोड़ो, सिर्फ मुसलमान बनो। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। अब मुसलमानों का अव्वलीन फरीजा क्या है? नमाज। बस मुझे भी मालूम है 2 मिनट में तकरीर खत्म करता है, मगर लाने वालों का दिल नहीं भर रहा है। बोलो, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से ज्यादा अमल करो। दिल का मैल मन, मीमे मोहम्मद के सदके जो मन है ना, मन के मैल को दूर करो, मोहब्बत मोहम्मद को बसा लो। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी बुलंद था, आज भी है, कयामत तक बुलंद रहेगा। एक हदीस का 2 टुकड़ा पेश करता हूं, उसी पर मेरा पैगाम इख्तिताम है। मेरे दोस्तों, एक रसूल पाक की हदीस है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। और अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक है।
कुर्रतु ऐनी बिका फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग नमाज को छोड़ देता है, जो बेनमाजी है, उनका हिसाब व किताब फिरौन और नमरूद के साथ होगा। किसके साथ होगा? बेनमाजी का हिसाब किनके साथ होगा? फिरौन और नमरूद के साथ होगा। इसलिए अब सोच लो, दो हदीसें आपके सामने, एक ये कि नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों में ठंडक पहुंचानी है, या बेनमाजी बन के तुमको फिरौन और नमरूद के साथ हिसाब करना है। 2 सेकंड में फैसला हो जाएगा। आप अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं, रसूलुल्लाह की आंख में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, तो अहले जलसा खड़ा हो जाएगा, सिवाय स्टेज वालों के अहले जलसा खड़ा हो जाएगा। फिरौन और नमरूद के साथ बेनमाजी होकर हिसाब करवाना है तो बैठे रह जाना। 1 सेकंड की मोहलत देता हूं, जो जिधर जाओ खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जिसको नमाज नहीं पढ़ना बैठे रहना। थोड़ी देर जहमत चाहूंगा, खड़े रहना। आप मेरे मुझसे बड़े लोग भी हैं, माफी चाहता हूं, आपको जहमत देना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी देर खड़े रहना। आप क्यों खड़े हुए हैं? जी जोर से बोले। मैं तबलीग करने आया हूं, तकरीर झाड़ने नहीं आया हूं। क्या करना है जी? आवाज जोर से बोले कि अर्शे इलाही में आपकी आवाज कबूल हो जाए। बोलिए जोर से। नमाज के लिए खड़े हुए, गोया क़याम के लिए मैंने दावत दी। सजदे की तौफीक अल्लाह अता फरमाए, सजदे की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह आपको आज से लेकर क़यामत तक नमाजी बनाकर रखे। जब तक आपकी उम्र खिजर हो, अल्लाह आपको नमाजी बनाकर रखे, नमाज पे जिलाए, नमाज पे मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।